तो क्लियर है प्रॉब्ली। देखो मेरे मैं बहुत स्टूडेंट पढ़ा चुका हूँ, इट्स नॉट माय फर्स्ट टाइम। सो व्हाट इज द थिंग इज कि if you are just putting the emphasis every time, we'll put our focus differently. For now we are more maybe more focused about reading and speaking and listening. Sometimes we'll change our focus to more about writing. You must be thinking, sir आप तो अभी writing करवा नहीं रहे हो, आप writing नहीं करवाते हो क्या क्लासेस में? You might, ऐसा हो सकता है आपका प्रिजम्पशन हो, क्योंकि अभी तक मैंने नहीं लिखाया होगा या नहीं बोला होगा कि write something. Generally I have not asked you, मतलब even I, if I ask you to write a simple sentence or maybe sub presente, very basics. So if I talk about A1 component of a syllabus, it's really that basic. It is very basic, where you're not supposed to write much, or not more than writing a few sentences like your name, your address, or your email address, your phone number, or pronounce it in French. That's what your skills you require. More skill you more require in your A1 is to keep the fundamentals ready for A1, B1, A2, and B1 upcoming standards. So keep vocab or use. If you're learning a lot of vocab, it will may not make sense here, but it will of course will make sense in your A2, in your B1, क्योंकि अभी जितना स्टैंडर्ड इंप्रूव होगा वहां पे टाइम कम और प्रेशर ज्यादा होता रहेगा। मैं बता रहा हूँ B1, जैसे B1 की बात करूँ तो B1 इज नॉट इवन इजी फॉर मी टू टीच एंड इवन इजी फॉर स्टूडेंट्स टू डू, क्योंकि B1 इज अ ब्रेक थ्रू। if you pass by B1 you can do B1, B2, C1, C2 also. But if you don't pass by that B1 level, either most of people remain before it, or if they pass they go beyond it, not limiting to B2. So एक थोड़ा सा है वहाँ पे टफ एरिया। इंटरमीडिएट या लोअर इंटरमीडिएट और इंटरमीडिएट के स्टेज पे थोड़ा सा ना ग्रे एरिया होता है, जहाँ पे आपको अब चेंज होना पड़ता है। बहुत लोग नहीं होना चाहते, तो वहाँ पे खुद ही ब्रेक हो जाते हैं, वो खुद एग्जिट कर जाते हैं खुद से ही। चलो ग्रेसफुली हम रख देते हैं, बट वहां पे अगर थोड़ा स्ट्रगल किया, गिरते पड़ते कैसे भी, just pass B1. B2 is not a challenge because B2 is more and more about practice. Just speak, write, essayer dire quelque chose en français. Just les expressions, utiliser les mots en français. C'est tout. Just, French is so easy. If I start speaking French, it's really difficult for me to keep my language in English or in Hindi, even in my native also. So it just, you won't believe, right? ऐसा बहुत लोग कहेंगे कि okay, you are just being so, but it's true. मतलब I would not lie, it's true. Convert करने में हो सकता है मुझे थोड़ा देर के लिए थोड़ा सोचना पड़े, but once we start thinking in French and delivering it, उसके बाद तो थोड़ा सा टाइम हिंदी में भी तो सोचने के लिए लगेगा। अभी सोचो फ्रेंच में सोचने के लिए टाइम लग रहा है, फिर जस्ट कंटिन्यू स्पीकिंग फॉर 1 month इन फ्रेंच। अब फिर आप एक मंथ बाद आओ फिर मुझे बोलो कि नो स्टार्ट स्पीकिंग हिंदी वेरी क्विकली, जस्ट स्विच टू हिंदी। It will take some minutes for me, right? Let me think, because I've not spoken for a month or something. Yeah, हो सकता है मेरे लिए हुआ है। It happened for me. In 2017, I was so deeply involved that I was speaking for around 10 hours a day. My health also got deteriorated because I was speaking for 10 hours per day continuously on phone call in French. So it was so tiring that I almost lost my health also. मेरा उस समय का एक फोटो भी है। मेरा मैं पहले से ही हेल्थ ऐसा है और उस समय मेरा और भी हालत खराब था पूरा सा। बट I never used any Hindi word for long, apart from talking to my mother, my parents, and my father and mother. That's it. At that time, I was at my university, and all I was surrounded by French people, like French speaking class, French students, French native people, my professors. So, anyways, I had more and more opportunity going to Ghats, Ganga Ghats, and talking to French native people. Like I have talked to natives for 2 hours continuously in my second year of graduation. So अब ये scenario I understand for me how it was. I almost not did not use Hindi for some few days. I was just surviving without Hindi.
even not using Hindi in 1 hours. Won't believe me, it was happening. So, so in that case, after few months, after like 6 months, I was in a condition to communicate in French very easily, very smoothly. It was coming so naturally that I didn't have to thought. Abhi, it is not better than that actually. If I'm not using it much, because I'm most of the time I'm using English to communicate. क्योंकि beginners को भी पढ़ाता हूँ. चलो B1 B2 में तो ठीक है. Beginners को मैं पढ़ाता हूँ तो यहाँ पे हिंदी इंग्लिश सब यूज करते हैं. अगर यही क्लास if I we can maintain in French, we could have if I assume. So condition would differ for you also, for me also. You understand? Yeah. यहाँ पे हो ही नहीं सकता पहली बात तो पॉसिबल नहीं है. It's really not possible. The idea is of A1 is to more to communicate you the idea of French, what it is, to make you understand that what you're preparing for. Yeah, logic, pronunciation, most important, phonetics. I think personally, for my understanding, I told you already that pronunciation for me is everything in French, not rules, no exceptions. कुछ भी काम नहीं आएगा. Even just pronunciation. If you're just able to pronounce it right, that's it. That's it. Whatever you say does not matter. Trust me, you will understand it very soon. Yes, क्या बोल रहा हूँ मैं? If you're just able to pronounce it right, even your incorrect sentence would be understood by your French speaker. You understand that? And even if you are saying a right, grammatically very correct, accurate sentence with wrong pronunciation, no one would understand you. You understand that? So if even to this word bonjour, if I say something banjour, something like that, they would not understand. They would be just shocked. What is this? What is this new word? So क्या होता है ना, नेटिव लोगों को क्या होता है कि इतना वो एक हम लोग का इतना एक एक वर्ड्स के लिए इतना बायसनेस जैसा एक क्रिएटेड होता है कि लेंस हो जाता है हमारा बहुत स्पेसिफिक लेंस होता है. हम उसके अलावा कुछ नहीं समझ सकते. टू से दैट वी अंडरस्टैंड दैट अगर कुछ और बोल रहा है तो हम कुछ और से रिलेट करने की कोशिश करते हैं कि ये कुछ और तो नहीं बोल रहा है. एवरी तो हम कुछ और से कंपेयर हम सोचते हैं पानी तो नहीं है कुछ और है क्या ये. तो पहले पहले नजर में हम नहीं समझ पाते फिर हमें बहुत ब्रेन स्टॉर्म करना पड़ता है कि पानी कैन बी पानी ऑल्सो राइट. ऐसा लग रहा है फिर भी हम कंफ्यूज होते हैं कि कहीं कुछ और तो नहीं कर रहा है जो हम गलत समझ जाए. मे बी मिसकम्युनिकेट तो मत हो जाए क्योंकि हो सकता है वो सही बोल रहा हो. ये एजम्पशन होता है कि सामने वाला पर्सन वुड बी स्पीकिंग इट राइट. इट्स जस्ट वी दैट वी आर नॉट मे बी एबल टू अंडरस्टैंड. तो हम एक सही वर्ड ढूंढने की कोशिश करते हैं. मे बी दैट्स व्हाट वी डू. इमर्स या पूरा आपका आप किस रूम में रहते हो किन लोगों के साथ रहते हो वो भी आपका लर्निंग स्किल पे इम्पैक्ट करता है. आपका रूम कितना क्लीन है इस पे भी डिपेंड करता है कि आपका लर्निंग ग्रोथ कितना होगा. ये मतलब इसका कोई लॉजिक नहीं बट ये सब साइंटिफिकली प्रूवन फैक्ट्स हैं. ये मैं नहीं बोल रहा हूँ. ये मेरा नहीं है. इस पे डॉक्यूमेंटेड है रिसर्च डॉक्यूमेंट्स हैं ये सब. या तो इट्स यूनिवर्सल. अब ये सारी चीजें अच्छी हैं कि साइंटिफिकली प्रूवन है. अब इसमें हमें कोई इमोशन ऐड करने की जरूरत नहीं है. इट्स क्लियर एंड प्रूवन. सो सोशल साइंसेस में भी चीजें साइंटिफिकली प्रूवन होती है विद डेटा विद फैक्ट्स विद इंफॉर्मेशन with patterns, with R&D. We do R&D also. We do research also. मेरे मास्टर्स में फिर रिसर्च पेपर भी था जहाँ पे हम लोग रिसर्च एंड वो करते थे. इसमें क्वेश्चनिंग इन्वॉल्व होता है. क्वेश्चनिंग कलेक्टिंग डेटा जस्ट लाइक एनी साइंटिफिक सब्जेक्ट. But चूंकि social science is more based on humans, thing like human nature and their behavior and mindset. Yeah, it's human science. But yeah, almost एक you know क्लासरूम तो एक समझो कि आपके पूरे लर्निंग में कितना रोल है. इट्स लाइक 30-40%. नो नो एग्जैक्टली नॉट एग्जैक्टली. इंग्लिश से ज्यादा मैं तो अपना इंग्लिश खो चुका हूँ फ्रेंच में. अगर आप फ्रेंच स्टार्ट करते हो तो इंग्लिश का एक्सेंट डिटोरिएट होता होगा कि नहीं आप सोचो. एक फ्रेंच लोग हमसे ज्यादा अच्छा इंग्लिश बोल सकते हैं क्या? नहीं.
Even if you listen to Emmanuel Macron, president of France, listen to his English, and you listen to your English, what you speak. Yeah, डिफर होगा आपका, आपका बेटर हो जाएगा, लेकिन उनका वैसे ही रहेगा जैसा फ्रेंच है। वर्ड्स के मामले में कुछ खास चेंजेस तो नहीं दिखता है, क्योंकि यूटिलाइज कहाँ करते हैं हम, समझ रहे हो ना। और इंग्लिश और फ्रेंच पहली बात तो दो अलग लैंग्वेजेस हैं, कोई कॉमनैलिटी नहीं है। कॉमन। या हाँ, ये बोल सकते हो आप जो बोल रहे हो, आपका क्वेश्चन का आंसर मैं देख रहा हूँ कि आप क्या बोल रहे हो, मैं समझ गया। आपके कहने का मतलब है कि अगर हमने फ्रेंच को सीख लिया तो क्या इंग्लिश सीखना भी आसान हो जाएगा, अगर आप ये बोलना चाह रहे हो तो यस। बट फ्रेंच सीखने से इंग्लिश आसान हो जाएगा ये मैं नहीं बोलूंगा, इंग्लिश सीखना आसान हो जाएगा, प्रोसेस टू लर्न इंग्लिश कैन बी इजी, बट नॉट इंग्लिश इटसेल्फ। लैंग्वेज अपने आप नहीं हो जाएगा कि यहाँ से परकुलेट होकर इंग्लिश भी improve हो जाएगा, ये मुझे नहीं लगता, बिल्कुल नहीं। मैं ऐसा बोलूँ किसी ब्रिटिशर को कि अगर आप हिंदी सीख लोगे तो आपका पंजाबी ठीक हो जाएगा, क्योंकि दोनों एक ही लैंग्वेज ओरिजिन है, तो आई डोंट थिंक इट्स राइट, बिकॉज इवन हिंदी लोगों को पंजाबी नहीं आती। सो इस लॉजिक से कॉमनैलिटीज हैं, बट आपको पंजाबी सीखने में आसानी हो जाएगा, पंजाबी आ नहीं जाएगा। या अंडरस्टूड। देख, मुझे पंजाबी नहीं आती, बट हाँ, मैं पंजाबी समझ सकता हूँ, क्योंकि मुझे हिंदी आती है। मैं बहुत सारे वर्ड्स देखा हूँ, कॉमन है पंजाबी और हिंदी में, काफी सारे वर्ड्स। तो मे बी मुझे ग्रामर भी नहीं आता पंजाबी का, मुझे सेंटेंस फॉर्मेशन भी नहीं पता कि आप लोग सब्जेक्ट पहले लिखते हो या ऑब्जेक्ट पहले लिखते हो या वर्ब पहले लिखते हो, मुझे नहीं पता ये फॉर्मेशन कैसा है, प्रीपोजिशन कहाँ रखते हो। थोड़ा बहुत डिफर भी हो सकता है इंग्लिश से, अब हमें पूरा डीप डाइव करना होगा, लेकिन फिर भी मैं समझ जाता हूँ थोड़ा बहुत। तो कभी पंजाबी एक लाइन भी नहीं लिखा है मैंने, और एक लाइन भी नहीं पढ़ा है, मुझे पढ़ने भी नहीं आते पंजाबी, बट मैं समझ सकता हूँ क्योंकि कुछ वर्ड्स कॉमन है हिंदी और पंजाबी में, है ना, काफी सारे। तो उस बेसिस पे मैं समझ जाता हूँ, बट हो सकता है कभी कभी मैं मिस गलत भी समझ सकता हूँ। इसका गारंटी नहीं है कि मैं हमेशा एक्यूरेट समझता हूँ, मुझे भी नहीं पता, क्योंकि बहुत बार मैं गाने सुनता हूँ पंजाबी तो मुझे समझ ही नहीं आता कि इस लाइन में क्या बोला, पूरा का पूरा लाइन ब्लैंक चला जाता है। तो या उस केस में मैं ये नहीं बोल सकता कि मैंने हिंदी, मुझे बहुत अच्छा हिंदी आता है, मेरा नेटिव है हिंदी, मैं बचपन से बोलता हूँ, बट मैं फिर भी मराठी पूरी तरह से नहीं समझ पाता हूँ आज भी, पंजाबी भी पूरी तरह से नहीं समझ पाता हूँ, बंगाली तो बिल्कुल नहीं समझ आता मुझे। तो उस लॉजिक से मे बी मैं बंगाली सीख सकता हूँ आसानी से, क्योंकि काफी सारे वर्ड्स फिर वहां भी कॉमन दिखते हैं मुझे, जैसे चाय पानी, सारे वर्ड्स कॉमन। बट उसको खाते हैं वो लोग, हम लोग पीते हैं, ये सारे भी तो लैकुनास भी हमें सीखने होंगे, नहीं तो हम वैसे में हम लोग चाय को पीते हैं इंडिया में, बिहार में, यूपी में, ये सारे रीजन में, बट वो लोग खाते हैं इसको। तो फिर एग्जाम्पल ईटिंग तो हमारे लिए पॉसिबल नहीं है चाय को, है ना। तो ये सब कम्युनिकेशन नहीं, कंटेक्स्ट मिसिंग हो जाता होगा, ब्लैंक हो जाते होंगे। अगर फ्रेंच लोग बोल देते हैं कि आई हैव 25 years, इफ यू हर्ड दैट दे आर सेइंग 25 years, तो क्या समझोगे, इसका क्या मतलब है। कुछ गलत समझ गए, लेकिन दे आर सेइंग देयर इज, the person is mentioning his is, but not saying he has something, it's not talking about possession, ownership, और या जीवन में 25 साल ही बचे हैं, गलत समझ गए आप, मिसकम्युनिकेट हो गया। तो मैं ये नहीं बोल सकता, एकदम गारंटीड मैं नहीं बोल सकता, क्योंकि मैं फ्रेंच बहुत डीपली पढ़ा हूँ, और इंग्लिश को भी मैंने कंपेयर करके पढ़ा है। फ्रेंच और इंग्लिश के बीच में कोई कंपैरिजन नहीं है, कोई कॉमन ग्राउंड नहीं है ऑलमोस्ट, क्योंकि जो आपको दिख रहा है कंपैरेटिवली सिमिलर, कुछ भी सिमिलर नहीं है। मैंने बोला होगा शायद सिमिलर है दोनों लैंग्वेजेस, सुपरफिशियली, बहुत सुपरफिशियली सिमिलर है, क्योंकि आप देखो ना एज को लेके डिफरेंस है, अभी 50 ऐसे एक्सप्रेशन हैं, 50 नहीं, हंड्रेड्स ऑन हंड्रेड्स, जो डिफरेंट हैं, एज को लेके हो गया, फियर को लेके। हम लोग यहाँ पे फ्रेंच में हम नहीं बोलते आई एम फियरफुल, इंग्लिश में बोलते हैं ना आई एम अफ्रेड, फ्रेंच में क्या बोलेंगे, आई एम अफ्रेड, je suis je suis peur, नो, आई हैव फियर। वे ऑफ एक्सप्रेशन भी तो समझना है ना प्रॉब्लम। हो सकता है आप फ्रेंच किताब से सीख लोगे, टेक्स्ट बुक से,
but फिर भी you will not be able to communicate. Even though you know grammar, you will not be able to communicate क्योंकि फ्रेंच लोग ग्रामर देख के नहीं बोलते. और grammar is not all about, like, language is not just about grammar. First of all, language is about what natives, how they are using it, and then just, and not just how they express, even about their culture, what they eat. If they don't eat rice, they must not be using this word very frequently. And यहाँ पे इंडिया में we are eating it every day, rice and roti. या मैं इतना ही समझ सकता हूँ कि कोई भी दो लैंग्वेज, कोई भी, इस दुनिया में 7,000 से भी ज्यादा लैंग्वेजेस हैं, एटलीस्ट 7,000 लैंग्वेजेस हैं, स्पोकन प्लस साइन. सो कोई भी दो लैंग्वेज, कोई भी दो लैंग्वेज कॉमन नहीं है. मैं इस बात के लिए गारंटी ले सकता हूँ, एकदम गारंटीड, गारंटीड. हाँ, अब इसमें क्या थोड़े बहुत एडवांटेजेस हैं, कॉमनैलिटीज हैं, वो तो आप लर्नर्स को समझना है, बट कोई भी दो लैंग्वेज एक नहीं है. ये लॉजिक ठीक है. इंग्लिश और फ्रेंच बिल्कुल एक नहीं है, बिल्कुल अलग है. अगर इतना होता एक तो फ्रेंच लोगों को, 50% लोगों को तो कम से कम इंग्लिश आनी चाहिए थी, राइट. अगर इतना कॉमन है तो हिंदी और इंग्लिश से जहाँ पे कोई कंपैरिजन है, हमारे यहाँ 50% से ज्यादा लोग आराम से बोल लेते हैं, और मेट्रोपॉलिटन में 100%, 80%, 90% नहीं सीखना है, वो सेकेंड लैंग्वेज नहीं सीखते. नहीं, और ये स्टीरियोटाइप भी है एक्चुअली, हम लोग भी पूरी तरह से समझे नहीं है इसको. प्रॉब्लम, एक और प्रॉब्लम है, बताता हूँ आपको. फ्रेंच लोग क्या सोचते हैं, इफ दे स्पीक, कम्युनिकेट टू यू इन इंग्लिश, समटाइम्स पीपल माइंड इट. मान लो फॉर एग्जाम्पल, आई एम अ स्टूडेंट, आई एम लर्निंग फ्रेंच, आई एम विजिटिंग पेरिस to communicate with French native people. I'm learning French, okay? And if I go there and talk to people, and they start talking to me in English, many tourists, they go there to practice French. They are learning French, right? Many millions of people are learning French every year. So ये सारे लोग कहीं ना कहीं टूरिस्ट भी हैं पेरिस में, है ना? वो हर साल जाते हैं. अब वहां पे पेरिस लोग, पेरिसियंस अगर इंग्लिश बोलने लगेंगे तो इन्हें, आर यू श्योर दैट दे वुड नॉट ऑफेंड इट? लाइक टूरिस्ट पीपल, लाइक पीपल हु आर विजिटिंग फ्रांस, दे मे माइंड इट, राइट? है कि नहीं? मान लो मैंने बोला बोंजूर, आप बोलते हो फ्रेंच पीपल दे आर सेइंग गुड मॉर्निंग, एंड आई एम सेइंग बोंजूर, सावा, एंड दे आर सेइंग गुड मॉर्निंग. हाँ हाँ, ओके ओके, यही चीज है. वहां पे तो लैंग्वेज है. हाँ, resistance as in, yeah, they are very close to the language and they don't speak second language, they don't want to speak English. Clearly they don't want to learn it, any other language than French. So एक तो है, पहली बात तो वो लैंग्वेज, उन्हें इंग्लिश बिल्कुल, वो इंग्लिश में फेल होते हैं स्कूल्स में. आप मानोगे नहीं, ये बात, ये फैक्ट है. फ्रांस की बात कर रहा हूँ. तो उन, एक तो है कि वो सीखना नहीं चाहते दूसरी लैंग्वेज, उन्हें लगता है फ्रेंच बहुत सफिशिएंट है. और दूसरी बात, एक प्राउड फुलनेस का भी फीलिंग्स है फ्रेंच को लेके, एक इलिटिज्म का भी फीलिंग्स है कहीं ना कहीं, यू कैन से दैट. सो और इलिटिस्ट लैंग्वेज की तरह अपने आप को रखते हैं, मेंटेन करते हैं, और बाकी दुनिया भी पीछे भागती है कहीं कहीं कमोबेश. तो एक है वो, इंग्लिश को भी लेके है कमोबेश, इंडिया में जैसे इंग्लिश को लेके, फॉर एग्जाम्पल, है कि नहीं? भले वो विजिबल नहीं है, लेकिन नहीं है ये तो नहीं बोल सकते आप, है ना? तो और फ्रेंच को लेके नहीं है इंडिया में, क्योंकि फ्रेंच वर नॉट द कॉलोनाइजर्स हियर, बट फ्रेंच को लेके कनाडा में है कि नहीं? या एक एलिटिज्म है और डोमिनेंस दिखाते हैं. आप देखते हो केबक रीजन्स, या उनकी सेंट्रल गवर्नमेंट में इन्वॉल्वमेंट आपको कंटिन्यूअस दिखता ही रहता है. और नॉट जस्ट देयर, मतलब बहुत सारे कंट्रीज,
इंडिया में भी कम बेस अब ये पॉपुलेट हो रहा है क्योंकि स्कूल्स में पढ़ाए जा रहे हैं लैंग्वेजेस। सो अभी वो एक जम्मू कश्मीर है आपका। Okay. Yeah, special case, countries, do create law, कुछ भी नहीं होता है। लॉ तो कुछ भी नहीं होता है, सिर्फ कंडीशंस होते हैं। कंडीशंस होते हैं और कंडीशंस लॉ क्रिएट करते हैं। कंडीशन था तो जम्मू कश्मीर इंडिया में भी था। कंडीशन है तो वहां भी है वो, क्या बोलते हैं, केबेक है। सो वो स्पेशल केसेस होते हैं कंट्रीज में, क्योंकि कंट्रीज को डिफेंड करना होता है बड़ा गोल्स, छोटे मोटे सेक्रीफाइसेस पार्ट ऑफ पॉलिसी, अदरवाइज देयर वुड बी टू कैनेडा, यू नो। इंडिया में ही देख कितने सारे डाइवर्सिफिकेशन है, कई सारे नए कंट्रीज के भी डिमांड उठते रहते हैं इंडिया में भी। इधर भले ही कम है, बट पंजाब को लेके है, जम्मू कश्मीर को लेके, तमिलनाडु को लेके था पहले, अरुणाचल को लेके है। तो आप देखो इंडिया में ही कमी नहीं है प्रॉब्लम्स की हमारे यहाँ, राइट। तमिलनाडु मतलब होता है, तमिलनाडु मीन्स होता है कंट्री, अ कंट्री which belongs to Tamils। तो तमिलनाडु स्टेट के नाम में ही कंट्री लगा हुआ है, तमिल्स कंट्री, ये भी ठीक है। आइडिया है एज अ कंट्री, आइडिया डज एग्जिस्ट एज अ कंट्री। आइडिया देखो, क्योंकि ये तो बहुत सारे पॉलिटिकल मुद्दा हो जाएगा इसमें जाना, मतलब इट्स नॉट दैट, मतलब गुड फॉर अस, बट आई एम जस्ट सेइंग सुपरफिशियली कि हाँ, ये सारी चीजें एज एन आइडिया तो एग्जिस्ट कर ही नहीं है कहीं ना कहीं, कम बेस, भले ही इवन दो, बट गवर्नमेंट कुछ सेक्रीफाइस करती है इनको अकोमोडेट करने के लिए, क्योंकि कोई भी जैसे ग्रुपिज्म, या तमिल है तो अपना एक कंट्री चाहिए। हाँ, हिंदी स्टेट्स लोग नहीं मांगते मोस्टली, लाइक यूपी बिहार, अब ये कहाँ अलग देश मांगेंगे, और ये तो मांग ही नहीं सकते प्रैक्टिकली। अब मध्य प्रदेश कैसे एक अपना कंट्री बनाएगा? तो इंडिया में बहुत सारे स्टेट्स ऐसे हैं जो मांग ही नहीं सकते उनके, क्योंकि उन्हें लगता है हम ही इंडिया है, तो अब हम क्या मांगे, मतलब ऐसा लगता है मिडिल ऑफ इट है, जैसे मिडिल ऑफ इट है, दिल्ली है, यूपी है, बिहार है, तो अब ये क्या मांगेंगे? यहाँ पे पॉसिबिलिटी नहीं है आपको मांगने का। और अब धीरे धीरे मेच्योरिटी इंप्रूव हुआ है तो उतना वो प्रॉब्लम्स इंडिया में कम हो गई है, अब वो कंडीशन है नहीं, जैसे उस एक्टिव नहीं है अब ये सारी चीजें, गवर्नमेंट है सब। और स्पेशली पंजाब को लेके अगर बात करें तो पंजाब इंडिपेंडेंट होने का मतलब है कि, चलो एक आइडियली, मैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स बता रहा हूँ, ये नहीं क्या मैं ये बोल रहा हूँ कि आजाद कर दो उन्हें, या आजाद होना चाहिए या अलग होना चाहिए, नहीं, जस्ट अ प्रॉब्लम इज बिकॉज पंजाब, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कोई भी एक इंडिपेंडेंट स्टेट नहीं हो सकता है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, आप कहीं और वो तो हो सकते हो, तमिलनाडु कैन बी फ्री कंट्री, और वो इकोनॉमिकली वायबल भी हो सकता है। आइडिया मैं बता रहा हूँ, इकोनॉमिकली प्रैक्टिकली पॉसिबिलिटी क्या है। तो तमिलनाडु हो सकता है इकोनॉमिकली, अब पॉलिटिकली नहीं हो सकता, अलग बात है, लेकिन पाकिस्तान पंजाब नहीं हो सकता। बिल्कुल नहीं हो सकता ना, बिल्कुल पॉसिबल। जम्मू कश्मीर का क्या हुआ? जम्मू कश्मीर इज वन एग्जांपल ऑलरेडी, वी डोंट हैव टू गो एनीवेयर, यही एग्जांपल। जम्मू कश्मीर कुड बी इंडिपेंडेंट, उसके पास अपना इकोनॉमी है, कैन सर्वाइव आल्सो, इकोनॉमिकली वायबल हो सकता है जम्मू कश्मीर। बट प्रॉब्लम क्या है? क्योंकि प्रॉब्लम कुछ नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि वो गलत जगह पे है और इंडिपेंडेंट मांग रहा है। समझ लो आप, जम्मू कश्मीर वहीं पे अगर तमिलनाडु की जगह पे होता, बस उसका रीजन अलग होता, वो सैंडविच नहीं होता दो कंट्रीज के बीच में, तो हो सकता था। बट आप गलत जगह पे हो और गलत चीज मांग रहे हो, कोई नहीं छोड़ेगा आपको। आप अगर इंडिपेंडेंट जिस दिन भी हुए, किसी की भी बात कर रहा हूँ, जम्मू कश्मीर को मान लो हमने इंडिपेंडेंट कर दिया कल को, ठीक है, इंडिया ने छोड़ दिया कि चलो हमें कुछ लेना देना नहीं है जम्मू JNK से, हम इसको खाली करते हैं, अपना आर्मी वापस लेते हैं और हम इसको खाली कर देते हैं। आपको क्या लगता है जम्मू कश्मीर के लोगों का क्या होगा? पाकिस्तान टेक ओवर के बाद उनका क्या होगा? मारे जाएंगे, जैसे बांग्लादेश का हुआ था। और
आप गलत चीज मांग रहे हो। उन्हें समझना चाहिए कि ज्योग्राफी अलाउ नहीं कर रहा है, प्रॉब्लम ज्योग्राफी का है, पॉलिटिक्स का नहीं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ज्योग्राफी है, अलाउ ही नहीं कर सकता। मैंने आज तक नहीं देखा है ऐसा, कहीं भी जो भी है सैंडविच हो रहा है। आप देखो पैलेस्टीन वाला इशू देखो, अ, कहीं भी, मतलब ये यूनिवर्सल फीचर है, इंडिया के बारे में नहीं है, किसी के भी बारे में। यू नो, ये गाजा स्ट्रिप देखो आप, क्या हालत है। जितने मिसाइल्स मन कर रहा है उतना मार सकता है इजराइल, उसमें कोई नहीं कुछ कर पाएगा। साइड पे है बट इंडिपेंडेंट नहीं हो रहा है, फिर भी कंट्रोल्ड है, लाइक समथिंग लाइक ऐसा है, घिरा हुआ है चारों तरफ से इजराइल, और घिरा हुआ है साइड पे। वर्चुअली आप कंट्रोल्ड हो, वर्चुअली आप आइलैंड ही हो। तो पूरा ओवरऑल कंट्रोल है उन पे। बस इंडिपेंडेंस के लिए सिर्फ आपको इकोनॉमी नहीं, ज्योग्राफी भी देखना चाहिए। ज्योग्राफी बहुत जरूरी है आपके किसी भी कंट्री के लिए। कनाडा को इंडिपेंडेंट होना ही है, समझ रहे हो नहीं, कनाडा को इंडिपेंडेंट ही होना है, ब्रिटिश को इंडिपेंडेंट ही होना है, ऑस्ट्रेलिया को इंडिपेंडेंट ही होना है। वो ज्योग्राफी है। नहीं मतलब एज अ सिंगल कंट्री और डुअल कंट्री वहां पे, मतलब टेक ओवर क्या कर लेगा आप, ऐसा नहीं होगा। इतना आसान नहीं है यार, ऐसा नहीं होता है। मतलब टेक ओवर कर लेगा मतलब क्या मतलब है कि एक कंट्री हो जाएगा। कौन, कनाडा के लोग? ओके, दैट्स नाइस। देखो देखो, एक चीज पॉसिबल है, होना ही चाहिए, लेकिन एक कंट्री नहीं, एक फेडरेशन बनाना चाहिए। फेडरेशन अलग चीज है ना, यूरोपियन यूनियन बना दो आप, यूरोपियन यूनियन बना दो, इसको दो कंट्रीज का यूनियन कर दो, जहाँ पे इक्वल पावर हो दोनों, कनाडा और यूएस का, दोनों के पार्टीज या मेंबर्स बैठे एक सीट एक चेयर पे। तो ऐसा आप डिजाइन क्रिएट कर सकते हो डिसेंट्रलाइज वो करने के लिए। ये अच्छा आइडिया है, ये तो होना ही चाहिए, ये तो बढ़िया आइडिया है, लेकिन लेकिन इसका मतलब ये नहीं होगा कि कोई सबॉर्डिनेट होगा, कोई ऐसा होगा। कंट्रीज तो दो ही रहेंगे। एक फेडरेशन क्रिएट कर दो जहाँ पे दोनों लोग अपने पावर्स डिवॉल्व करें एक जगह। तो ये तो कनाडा के लिए और अच्छा हो जाएगा ना, इक्वल स्टेटस मिल जाएगा, यूएस इक्वल्स टू कनाडा। आइडियलिज्म में चला गया, जैसे यूरोपियन यूनियन कैसे सरवाइव कर रहा है अभी एक यूनिट की तरह। बहुत आइडियल केस है ना ये। बट इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि नेपाल एंड इंडिया इज वन कंट्री और हो जाएगा ऐसा कुछ। या या ओके। मैं तो बोल रहा हूँ प्रबलीन जी कि पूरे ग्लोब को एक कंट्री घोषित कर दो, राइट। उस लॉजिक से अगर इतना कंट्रोल्ड है, इतना आप लोग इतना मेच्योर हो चुके हो पूरे देश, तो पूरे वर्ल्ड को एक कंट्री बना दो, आर्मीज वगैरह पूरा, न्यूक्लियस वगैरह पूरा वापस लो सारे, एंड ये कोई वॉर वगैरह बंद करो। सबसे अच्छी बात तो यही होगी, बट इतना मेच्योर हुए हैं क्या हम लोग अभी, या फिर इस तरह का कुछ दिख तो नहीं रहा है मुझे, बट ठीक है। अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो अच्छी बात है, छोटी छोटी स्केल्स पे अगर हो रहा है तो अच्छा है ना। यूरोप, आप देखो यूरोपियन यूनियन का एक एग्जांपल देखो आप, कितना बढ़िया मास्टरपीस रेडी किया उन लोगों ने। भले उनकी सिक्योरिटी थ्रेट अलग है, यूएस से प्रॉब्लम है या नॉट, बट वो सिक्योरिटी अगर कुछ चीजों को छोड़ दे, तो यूरोपियन यूनियन जैसा बेस्ट एग्जांपल मेरे अंडरस्टैंडिंग। एक एशियन यहाँ पे भी है, हमारे यहाँ एशिया में भी एक आसियान करके, साउथ ईस्ट एशिया, राइट, सार्क या कुछ, क्या नाम है उसका? सार्क तो हमारा है, साउथ ईस्ट एशिया नहीं बोल रहा हूँ, आसियान। आसियान जो ऑर्गेनाइजेशन है ना, जिसमें सारी ये कंट्रीज, फिलीपींस एंड इंडोनेशिया, नो, ये सारे ईस्टर्न कंट्री। ये एक सेकेंड,
या नहीं, साउथ ईस्ट एशिया हमारा हुआ, साउथ ईस्ट एशिया लाइक श्रीलंका, इंडिया, नेपाल, पाकिस्तान, या साउथ ईस्ट एशिया। हाँ साउथ एशिया, हम साउथ एशिया में हैं, वो लोग साउथ ईस्ट एशिया है। तो उनका जो आसियान आई थिंक ग्रुप है, मैं श्योर नहीं, आई थिंक आसियान है एशिया। सो वो ग्रुप एक सेकंड बेस्ट मास्टरपीस है जो यूरोपियन यूनियन के बाद ऐसा इवॉल्व हो गया है, जहाँ पे सबसे ज्यादा पावर डिवॉल्व कर चुके हैं ये लोग। एशियन कंट्रीज होते हुए भी मतलब इतना ट्रस्ट, इतना हाई लेवल पे ट्रस्ट पहली बार देखा गया है एशिया में। ये पहला एग्जांपल है एशिया एशिया के कंटेक्स्ट में। तो ये अमेरिका में भी रेप्लिकेट हो सकता है मेरे अंडरस्टैंडिंग में, इसमें कोई बुराई नहीं है। बस एक ही कंडीशन होना चाहिए कि दोनों कंट्रीज अभी भी आगे भी इंडिपेंडेंट रहेंगी, और जब मन करे उस ग्रुपिंग से बाहर निकल सकते हैं, एग्जिट कर सकते हैं, जैसे ब्रेग्जिट हुआ फॉर एग्जाम्पल। तो एक छोटा सा सम जो है, कॉन्ट्रैक्ट सम पे करके जब मन करे विड्रॉ कर सकते हैं। उस टर्म्स पे एक फेडरेशन बनाया जा सकता है, उसी टर्म्स पे बनाया जा सकता है। ये आइडिया जो मैं बोल रहा हूँ, ओके, फेडरेशन वाला आइडिया है क्या? एक फेडरेशन डज नॉट मैटर, इंटरनेशनल लॉज एक ही होंगे। या यस, हाँ, या हाँ, दैट्स इट। तो ये तो अच्छी बात है ना, ये इस तरह का मैकेनिज्म अगर काम करे तो जनरली मेरे हिसाब से भी अच्छा है। और स्पेशली बिजनेस माइंडेड लोग जो है उनके लिए तो और अच्छा है, क्योंकि उन्हें बार बार अलग अलग कंपनी रजिस्टर नहीं करनी पड़ती, और एक्सपेंशन के लिए एक्स्ट्रा खर्च नहीं करने पड़ते। आप समझो कि एक्सपेंडेड है, बस आपको जाके ऑफिस ले लेना, दैट्स इट, ऑलरेडी है बिजनेस। तो आपको ज्यादा टर्म एंड कंडीशन में भी खर्च नहीं करना पड़ता, प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव होती है बिजनेस। जो लोग बिजनेस में, उनके लिए तो बहुत अच्छा है ये। और आई मीन सबके लिए अच्छा होगा आई थिंक, आई डोंट नो कितना इम्पैक्ट होगा, बट इवन एम्प्लॉइज के लिए भी तो ठीक है कि वो अलग अलग कंट्रीज में जॉब कर सकते हैं, माइग्रेट करना इजी हो जाएगा। ये इतना फ्रेंच नहीं सीखना होगा, वोलेंटरली सीखना होगा, मतलब कंपल्सरीली नहीं सीखना होगा। आप ऑप्शन की तरह सीखोगे कि हाँ मेरे पास होना चाहिए, आपको कोई पुश नहीं करेगा कि ये सीखो ही सीखो, वो चीज से बच सकते हैं। और उसमें और अच्छा एक्सपीरियंस होगा ना, ये पुश करना सही नहीं है मेरे हिसाब से, किसी को भी ये करना ही होगा लीगली और whatever, अच्छा नहीं लगता है। हम्म। तो फेडरल बनाने में तो क्या फायदा होता है? फेडरल बनाना प्रैक्टिकल डिसीजन है, बहुत ज्यादा रीजनेबल डिसीजन है, क्योंकि प्रॉफिट जो हमारा एक्सपेंस हो रहा है ना टर्म्स एंड पॉलिसीज मेंटेन करने में, बॉर्डर मेंटेन करने में, वो प्रॉफिट हम हाफ हाफ कर लेंगे। एक जो लॉस हो रहा है, हमारा एक्सपेंसेस हो रहा है एक दूसरे से डिफेंस के चक्कर में, वो हाफ कर सकते हैं, और दूसरा प्रॉफिट रीप आउट कर सकते हैं इंटरनेशनल फोरम्स में, हम दोनों अगर एक साथ हो तो, दो कंट्री, तो वो रीप आउट करेंगे, फिर उसमें भी हाफ हाफ डिवाइड कर सकते हैं, उस प्रॉफिट का भी डिवीजन हो सकता है कहीं ना कहीं। तो एक तरह से डबल डाउन कर सकते हैं। ये सारे प्रॉफिट्स जो लूज हो रहे हैं हमारे, उन दो कंट्रीज के बारे में मैं बोल रहा हूँ, यूएस एंड कनाडा की बात कर रहा हूँ, जहाँ पे कंपेरेटिवली अब एक कंट्री पाकिस्तान जैसी कंट्री अकेले वो उनके अपोजिशन में तो जीत पाएगी नहीं, नहीं कर पाएगी। सो ये तो रीजनेबल है, इंडिया और पाकिस्तान को एक हो जाना चाहिए मेरे उस हिसाब से, मेरे उस लॉजिक से, फेडरेशनल लॉजिक से, क्योंकि हमें कम्पीट करना है ना किसी दूसरे कंट्रीज को। बट इतनी मेच्योरिटी मुझे नहीं लगता, ये टमाटर आलू के लिए हम लोग लड़ते हैं, तो इतनी मेच्योरिटी तो है नहीं फॉर नाउ। तो हाँ, आइडेंटिटी क्राइसिस हो जाएगा अभी 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 पाकिस्तान को। तो अभी लगेगा कि बनाया ही क्यों था, वो पूरा डिसीजन गलत हो जाएगा 50-100 सालों में। पूरा जवाब देना पड़ता ना हिस्ट्री में कि आपने ऐसा हुआ क्यों, और अगर नहीं तो सारे लोग हंसेंगे, ये गलत डिसीजन था, जिंदा मूर्ख थे, ये घोषित हो जाएगा, तो वो गलत हो जाएगा। उसको डिफेंड करने के लिए तो हमें अलग रहना ही पड़ेगा, कम से कम कुछ सालों तक, 200-400 साल तक। यस, इट इज, इट इज ईगो प्रॉब्लम, इट इज कास्ट कम्युनिटी एंड ऑल, बहुत सारे डिफरेंसेस भी हैं इंडिया में। एकता तो है ही नहीं, मुझे जहाँ तक लगता है नहीं है, यूनिटी वाली चीज मिसिंग है। और पाकिस्तान जब से बना है तब से तो अलग ही हम लोग एक अलग प्रॉब्लम से झेल रहे हैं, बांग्लादेश से अलग झेल रहे हैं।
फिर बाकी सारे कंट्रीज भी वैसे ही हाल में, श्रीलंका हो गया, नेपाल हो गया, सब चाइना से। विद इन इंडिया भी यूनिटी मिसिंग है, हिंदू मुस्लिम को लेके अभी बहुत एक्सट्रीमिटी दिख रही है। और कहीं ना कहीं मैं बताऊं आपको सच, तो मैं मुझे रिकॉर्डिंग लास्ट